Hello friends, very warm welcome to LK Academy. Welcome to Current Affairs lecture number 38. I hope you have gone through all the previous current affairs lectures and all the topics that we have covered so far is clear to you. And also I hope every one of you is safe and studying for your upcoming examination. तो इसी के साथ आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे. Before that we will start a lecture with our quote और वो है द प्राइज ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क. जैसे कि मैंने पहले कई बार आप लोगों से कहा है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक अ प्लेस इन अ मेरिट लिस्ट, देन इट इज़ नॉट अ वन डे जर्नी, राइट. आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्रोडक्टिव एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, स्मार्ट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी मेहनत के बाद you will achieve the desired result. And it is not impossible. Okay, everyone can achieve everything. तो इसी के साथ आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम देखेंगे. अगेन इट इज़ अ इजी टॉपिक एंड रिलेटेड टू रामसार साइट. तो पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि दो दो करके रामसार साइट्स जो है वो इंक्लूड हुई है इंडिया के रामसार लिस्ट में. तो ये उसी के साथ जुड़े हुए न्यूज़ है. सो लद्दाख सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जिसको ऐड किया गया है, जिसको रिकग्निशन मिला है एज अ रामसार साइट. और इसी के साथ इंडिया में रामसार साइट के जो टोटल नंबर है वो हो चुके हैं 42, राइट. पहले थे 27, उसके बाद 10 रामसार साइट्स को 2020 में 1 जनवरी 2020 में रिकग्नाइज किया गया. उसके साथ हमारे नंबर्स हो गए थे 37. आफ्टर दैट 5 रामसार साइट्स हैव बीन एडेड in a phase wise manner, or as of January 2021 India has 42 Ramsar sites. So recently India has added Sokar wetland complex in Ladakh and it's a 42nd Ramsar site, a conservation status conferred by International Ramsar Convention on Wetlands. Previously, the Lunar Lake in Maharashtra and Sur Sarovar, also known as Keetham Lake in Agra, were added to the list of Ramsar sites. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि the total number is now 42. गुजरात में there is one and only Ramsar site is Nal Sarovar wetland. What is this Sokar wetland complex? So the Sokar basin is a high altitude wetland complex consisting of two principal water bodies. कौन सी है ये two principal water bodies? So first one is Statsbukso, a freshwater lake of about 438 hectares to the south. Sokar itself, a hypersaline lake of 1800 hectares to the north, situated in the Changthang region of Ladakh. तो ये नॉर्थ और साउथ में दो फ्रेश वाटर लेक है. वन इज़ अ फ्रेश वाटर लेक एंड वन इज़ अ हाइपर सेलाइन लेक, जो कि थोड़ा खारा पानी वाला लेक है. दोनों ही चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख में है और दीज आर टू मेन वाटर bodies. It is called Sokar, meaning white lake, because of the white salt effluents found on the margins due to the evaporation of highly saline water. It is an A1 category important bird area as per the BirdLife International and a key staging site in the Central Asian Flyway. ओके, अब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? तो जब माइग्रेटरी बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह सीजनल मैनर में जब मूव करेंगे, सो दे फाइंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर सम डेज. तो वो एक काफ़ी अच्छा स्टॉपेज है फॉर दोज माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, सो वही है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. इट कवर्स अ लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ यूरेशिया between the Arctic and Indian Oceans and the associated island chains. The flyway comprises several important migration routes of waterbirds, most of which extend from the northernmost breeding grounds in the Russian Federation, Siberia, काफ़ी ठंडी वाला रीजन माना जाता है, to the southernmost non-breeding grounds in West and South Asia, the Maldives and the British Indian Ocean
टेरिटरी। तो जब साइबेरिया में या अटलांटिक में काफ़ी ठंडी जब बढ़ जाती है, तो बर्ड वहाँ से माइग्रेट करके कम ठंडी जगहों पर माइग्रेट करते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे ही अगेन एटमॉस्फेयर चेंज होता है इन देयर नेटिव प्लेस, दे अगेन मूव टू देयर नेटिव प्लेस। इट कवर्स एटलीस्ट 279 populations of 182 migratory water bird species, including 29 globally threatened species। तो ऑलमोस्ट ऑल जो स्पीशीज है बर्ड्स की वो या तो एंडेंजर्ड है या थ्रेटन्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है इन द IUCN रेड लिस्ट। वाई? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ओके, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं, फॉरेस्ट के जो एरियाज है वो कम होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को वी आर अफेक्टिंग। सो ऑल दोज रीजन्स आर अफेक्टिंग द numbers of particular species of birds. Okay, so this site, which site? Sokar Lake in Changthang region. This site is also one of the most important breeding areas of the nearly threatened black naked crane in India. It is the major breeding area and many other species along with these main species. तो आपको याद रखना है अबाउट द रामसार साइट्स। नाउ व्हाट इज़ द वेटलैंड? अगर आपको डेफिनेशन कभी पूछी जाए वेटलैंड्स की, सो व्हाट विल बी द वेटलैंड्स? Wetlands are defined as the lands transitional between terrestrial and aquatic ecosystems where the water table is usually at or near the surface or the land is covered by shallow water. ओके, जो काफ़ी डीप वाटर नहीं है, ऐसे शैलो वाटर वाली जो जगहें हैं, ऐसी जो बायोडाइवर्सिटी है उनको वेटलैंड्स कहा जाएगा। एंड वाई द कंजर्वेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ वेटलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वो काफ़ी डाइवर्सिटी वाली वाइल्ड लाइफ का घर है, एंड दैट्स वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंजर्व। So wetlands provide a wide range of important resources and ecosystem services such as food, water, fiber, groundwater recharge, water purification, flood moderation, erosion control, and climate regulation. They are in fact a major source of water, and the main supply of fresh water comes from an array of wetlands which help soak rainfall and recharge groundwater। और इसी के लिए उनको संभालना, उनको प्रिजर्व करना, उनका कंजर्वेशन हमारे लिए नेसेसरी है। और ये काम कौन करेगा? ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज आर conserving this kind of wetlands, which is a crucial part of our biodiversity under the Ramsar Convention. Okay, and we have multiple times discussed about this, so we are not going into the same topic again and again. But for your simple revision, I have given the detailed information about Ramsar site and Ramsar Convention on your screen. Just go through it once. Okay, multiple times we have seen this topic. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू किसान रेल। तो अगर आपको याद हो तो 2019 के बजट में किसान रेल और कृषि उड़ान के बारे में बात की गई थी। और क्या था ये चीज़? तो बेसिकली जो छोटे फार्मर्स है वो अगर अपनी फसल या पेरिशेबल आइटम्स को, जो बिगड़ जाए ऐसे जो फ्रूट्स है या सब्जियां है, अगर उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर भेजना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, सो उनके पास अब तक रोडवेज के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंडर द 2019 जनरल बजट, वित्त मंत्री की तरफ से, फिनांस मिनिस्टर की तरफ से किसान रेल और कृषि उड़ान नाम की 2 योजनाएं स्टार्ट करने का वचन दिया गया। क्या था ये? कि ऐसे छोटे किसानों के लिए सस्ते फ्रेट में, सस्ता भाड़ा देकर उनके जो पेरिशेबल आइटम्स है उनको कम से कम समय में फ्रॉम वन पॉइंट टू दी डेस्टिनेशन टू दी अदर पॉइंट पहुंचाया जाएगा। रेलवेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कृषि रेल या कृषि उड़ान जो है, ओके, विच इज़ दी
एयर मीडियम फ्लाइट्स वो अभी स्टार्ट होना बाकी है। ड्यू टू कोविड द सिनेरियो हैज़ बीन लिटिल बिट चेंज्ड, तो वो भी आने वाले टाइम में जैसे ही गवर्नमेंट की कन्वीनियंसी के हिसाब से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द 100th किसान रेल सर्विस फ्रॉम सांगोला इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए पहले क्या था, जब ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 2020 में, इसको फर्स्ट किसान रेल वो स्टार्टेड, तो उस टाइम पे इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई गई थी। बट आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन बाय लैक्स ऑफ फार्मर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है किसान रेल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है। सो इन अगस्त 2020 द फर्स्ट किसान रेल डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स was begin to connect farmers and markets across the country. The government has invested crores of rupees in modernizing the country's supply chain, of which the Kisan Rail service is a न्यू एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा, अब तक किसान रेल जैसी कोई सुविधा हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। अगर किसान को एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान भेजना था तो ही हैज़ टू यूज़ द रोडवेज ओनली। बट नाउ एयर मीडियम इज़ ऑल्सो अवेलेबल एंड रेल मीडियम इज़ ऑल्सो अवेलेबल। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट वाटरवेज भी इसके लिए स्टार्ट करने की प्रोसेस में है। Announcements regarding modernizing agriculture were made in the budget 2020-21, which had envisaged the Kisan Rail Service and the Krishi Udan scheme. Krishi Udan was launched by the Ministry of Civil Aviation on international and national routes to assist farmers in transporting their agricultural products so that it improves their value realization. Under the scheme, financial incentives in terms of concession from the center, state government, and airport operators are extended to selected airlines to encourage operations from unserved and underserved airports and keep airfares affordable. राइट, तो ये सारे चीज़ें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the Kisan Rail network has expanded in the past 4 months. Earlier, the Kisan Rail was being run only once a week, but now, due to increased demand, it is being run thrice a week currently as of January 2021. देखिए हफ्ते में एक दिन की फ्रीक्वेंसी से उसको स्टार्ट किया गया था, बट क्योंकि फार्मर्स आर यूजिंग दिस फैसिलिटी वेरी प्रोडक्टिवली और उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ट्रेन के कोचेस खाली नहीं जा रहे। ओके, IRCTC इज़ गेटिंग इनफ बुकिंग्स एंड दैट्स वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रिप्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू थ्राइस अ वीक। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो जैसे पहले मैं आपको बता चुका कि ये जो नई गवर्नमेंट थी, राइट, वो जब 2014 में जब पावर में आई फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका काफ़ी पहले से ये गोल रहा था कि बाय 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी ऑफ द नेशन, फार्मर्स की जो इनकम है उसको 2014 के मुकाबले हमें दोगुना करना है, डबल कर देना है। एंड टू अचीव दिस गोल देयर आर मल्टीपल schemes are on ground placed by the government, and this is one of those schemes. So this experiment will prove especially benefit for the country's 80% small and marginal farmers. तो जो छोटे और जो छोटी ज़मीनों के साथ खेती करते हैं, जिनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ नॉट बिग इन द वॉल्यूम, दैट मच बिग इन द वॉल्यूम, उनको सस्ते फेयर में अपना जो सामान है वो दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में बेचने का मौका IRCTC दे रही है। दिस सर्विस वुड ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर while strengthening the country's cold supply chain. The lack of cold storage facilities had often resulted in losses for
फार्मर्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पेरिशेबल आइटम्स अगर है, तो अगर उसको 1 या 2 दिन में डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाया गया, तो वो सारे आइटम्स बिगड़ जाएंगे और उनका कोई खरीदार नहीं होगा। उस केस में फार्मर्स को वो सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब क्योंकि रेलवेज़ कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहा है, फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है। इंडियन फार्मर्स कैन नाउ ट्रांसपोर्ट देयर produce to far-flung places within the country as well as gain access to international markets. According to the government, the Kisan Rail Service, along with the amended farm laws, would help protect farmers against the fluctuations in demand and supply. राइट। और अभी जो ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट है, तो बेसिकली 4 मुद्दों के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा है। 2 मुद्दों के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट और किसानों के बीच, फार्मर यूनियंस के बीच सेटलमेंट हो चुका है फॉर 2 रिमेनिंग टॉपिक्स। एक है टू मेक अ लॉ दैट एंश्योर्स द एमएसपी, और दूसरा जो डिमांड है किसान आंदोलन का या किसान जो यूनियन है उनका, कि तीनों जो फार्म लॉज है उसको वापस ले लिया जाए। ओके ना, गवर्नमेंट एमएसपी के लिए रेडी है कि एमएसपी के लिए गवर्नमेंट कैन मेक अ सेपरेट एक्ट, बट गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू टेक बैक ऑल 3 लॉज। राइट। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो दैट्स अ वीक पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट, कि कल को उठकर अगर 100 लोगों को भी कोई रूल अगर पसंद नहीं आता है कंट्री का, तो दे विल जस्ट स्टार्ट protesting against the government, and government do not want that. So that's why the किसान आंदोलन इज स्टिल इन प्लेस, और वो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से चल रहा है और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। वी हैव टू वेट फॉर द आउटकम। The next topic is also related to similar kind of a module, और वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये भी एक रेलवे कॉरिडोर सेटअप किया जा रहा है ताकि देश के अलग अलग हिस्सों को, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट को रेलवे लाइन के थ्रू जोड़ा जा सके। देखिए एज ऑफ नाउ क्या होता है, अगर आपने कभी रेलवे में सफ़र किया है, सो जो मालगाड़ी है या तो जो लगेज ट्रेन्स है, जो सामान लेकर ट्रेन्स जो जाती है, उनके मुकाबले जो पैसेंजर ट्रेन्स है उनको प्रायोरिटीज़ दी जाती है। मीनिंग दैट पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन्स आर रनिंग ऑन दी सिंगल ट्रैक। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक ही ट्रैक पे जब 10 पैसेंजर ट्रेन चलेगी और 10 गुड्स ट्रेन चलेगी, तो प्रायोरिटी पहले किसको दी जाएगी, 10 पैसेंजर ट्रेन्स को दी जाएगी, क्योंकि उसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। अब इस चक्कर में क्या होगा कि जो सामान एक जगह से दूसरे स्टेशन पर या एक शहर से दूसरे शहर में 2 दिन में पहुंच सकता था, इफ़ देर इज़ नो इंटरप्शंस, इफ़ देर इज़ नो होल्ड्स और डिलेज, वही ट्रेन वही सामान अब 4 दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। तो इससे जो ओनर जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसको काफ़ी नुकसान होता है कई बार। एंड देर इज़ अ गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। तो ये पूरी जो सप्लाई चेन है उसको ठीक करने के लिए, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो पूरा सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त करने के लिए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि क्यों ना गुड्स ट्रेन के लिए पूरी एक नई रेलवे लाइन देश में बिछा दी जाए। अब इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जब जल्दी टाइम पे पहुंचने लगेगा, तो कॉमर्स के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। दूसरा, अब जब पैसेंजर ट्रैक के ऊपर से जब गुड्स ट्रेन दूसरे ट्रैक पे चली जाएगी, जो इनका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा वहाँ पे जब चली जाएगी, तो एग्जिस्टिंग सिंगल ट्रैक्स पे पैसेंजर ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि सिंगल ट्रैक पे अभी 20 ट्रेनें चलती है, 10 आर फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट ट्रेन्स और गुड्स ट्रेन, और 10 है जो पैसेंजर ट्रेन। अब जबकि वो 10 ट्रेन्स चली गई है फ्रेट कॉरिडोर पे, दे हैव अ सेपरेट कॉरिडोर नाउ, सेपरेट ट्रैक नाउ,
तो वो 10 गुड्स ट्रेन की जगह खाली बनी हमारे पैसेंजर ट्रैक पे, वहाँ पे गवर्नमेंट नई 10 पैसेंजर ट्रेन लाकर चला सकता है। देखिए, रेलवे फील्ड में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। किसी को वेटिंग टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एवरीवन विल हैव द कंफर्म टिकट। और इससे जो ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया has inaugurated a 351 kilometer section of the Eastern Dedicated Freight Corridor, that is known as EDFC, and an operation control center between Khurja and Bhaupur in Uttar Pradesh. EDFC is a 1839 kilometer project billed as the largest rail infrastructure being built in independent India and has been in the making since 2006. बट काफ़ी समय से उसका जो काम है वो काफ़ी धीरे चल रहा था. दिस गवर्नमेंट इज एमिंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन नेक्स्ट 4 to 5 years. 2024-25 तक इसको पूरा करने का एम लेकर ये गवर्नमेंट चल रही है. नाउ व्हाट इज़ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, इट इज़ अ हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर that is exclusively meant for the transportation of freight, or in other words goods and commodities. वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी उस ट्रैक पे, ओनली गुड्स ट्रेन विल बी रनिंग ऑन दोज ट्रैक्स. DFC involves the seamless integration of better infrastructure and state of the art technology. DFC consists of two arms. अब देखिए, इंडिया जैसे बड़े लैंड कंट्री को अगर रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है तो उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि किस तरह से मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को रेलवे से जोड़ा जा सके. तो दैट्स वाई DFC कंसिस्ट मेनली ऑफ टू आर्म्स. One is Eastern Arm and one is Western Arm. So Eastern Dedicated Freight Corridor is the first arm. It starts at Sahnewal, Ludhiana in Punjab and ends at Dankuni in West Bengal. तो देखिए, पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल तक का एक पूरा कॉरिडोर आपको इमेजिन द रेलवे लाइन. मैं आपको मैप दिखाऊंगा इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. द EDFC route has coal mines, thermal power plants, industrial cities. Feeder routes are also being made for this. The EDFC route covers Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. देखिए, so many large states are being covered through this freight corridor. अब देखिए, अगर मान लीजिए पंजाब से अगर सामान को वेस्ट बंगाल भेजना होगा, कितना ईजी हो जाएगा. विद इन 1 day और मैक्सिमम ऑफ 2 days डेडिकेटेड ट्रैक अगर होगा, रेलवे लाइन अगर होगा, तो सामान को सीमिंगलेसली विदाउट एनी हर्डल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकेगा. द वर्ल्ड बैंक इज फंडिंग अ मेजोरिटी ऑफ द EDFC. द 351 किलोमीटर लॉन्ग न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन will decongest the existing Kanpur Delhi main line and double the speed of freight trains from 25 km per hour to 75 km per hour. ओके, स्पीड जब बढ़ेगी तो जो टाइम ऑफ द जर्नी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सेकेंड आर्म इज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. द अदर आर्म इज द अराउंड 1500 किलोमीटर WDFC फ्रॉम दादरी इन उत्तर प्रदेश to Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai, touching all major ports along the way. मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, ये सब रूट होता हुआ ये कहाँ ज्वाइन करेगा, यूपी में ज्वाइन करेगा. द WFC covers हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. Again, most of the population is covered through WDFC. It is being funded by Japan International Cooperation एजेंसी. तो दोनों कॉरिडोर अलग अलग एजेंसी के थ्रू फंड हो रहे हैं, वो भी आपको याद रखना है. कनेक्टिंग लिंक फॉर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्म, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन दादरी एंड खुर्जा. द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ दिल्ली, मुंबई एंड अमृतसर, कोलकाता आर also being developed around both these DFCs. Okay, and this is the
प्रपोज्ड प्लान। तो जो रेड लाइन आपको दिख रही है दैट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड सैंक्शनड, उसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली द अदर कलर्स यू कैन सी इन दिस टेबल। तो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है जिनको अप्रूवल मिल चुका है, जिनको अप्रूवल मिलना बाकी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से यू कैन रेक्टिफाई। ओके, सो देखिए मेजरली ऑल द स्टेट्स आर कवर्ड, राइट। जब चेन्नई को साउथ में जोड़ दिया जाएगा तो साउथ के जो 3 या 4 स्टेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली ईजीली कवर हो जाएंगे। ओके, और जब वेस्ट बंगाल को कवर किया जाएगा और बिहार को कवर कर लिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इज ऑटोमेटिकली कवर्ड। मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सेस है वो ज़्यादा नज़दीक हम उसके चले जाएंगे। एंड दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो बिल्डिंग द रेल नेटवर्क इन नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ। तो वो भी आने वाले सालों में हमें पता चलेगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द सिग्निफिकेंस, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है। इंक्रीज्ड कैपेसिटी, डीकंजेशन, जो ट्रैफिक होगा ऑन दी रेलवे ट्रैक्स वो कम हो जाएगा, जिससे ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन्स चलाई जा सकेगी और ज़्यादा फ्रेट ट्रेन्स चलाई जा सकेगी। तो दोनों जगहों पे हमें फ़ायदा है। बिजनेस जनरेशन होगा, राइट। अब रोडवेज के मुकाबले जब रेलवे सस्ते फ्रेट में, सस्ते भाड़े में जब किसी व्यापारी का सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जा सकता है तो बिजनेस भी जनरेट होगा। पंक्चुअलिटी, जब नए कॉरिडोर्स बनेंगे, जब नए रेलवे ट्रैक्स बनेंगे तो पंक्चुअलिटी भी धीरे धीरे हम पंक्चुअलिटी के नज़दीक पहुंचेंगे। आज क्या होता है सिंगल ट्रैक पे, अगर एक ट्रैक पे कोई एक छोटा सा भी माइनर फॉल्ट हो गया तो उस ट्रैक पे चलने वाली सारी ट्रेन्स डिले हो जाएगी, 1-1 घंटा 2-2 घंटा डिले हो जाएगी ट्रेन्स। ओके, सो वो जो सिचुएशन होगी उसको अवॉइड किया जा सकेगा इन दी फ्यूचर। मेजर बेनिफिट्स क्या होंगे, सो लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोडवेज के हिसाब से रेलवे का जो रेंट है या भाड़ा है वो क्या होगा, सस्ता होगा, फ्रेट होगा वो सस्ता होगा। हायर एनर्जी एफिशिएंसी, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली, इट विल प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, राइट। और इसका जो इंडिया में जो एजेंसी इसको संभालेगी दैट इज़ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। It is headquartered in New Delhi and it is a public sector undertaking, meaning it's a PSU company जिसको गवर्नमेंट के थ्रू पैसा दिया जाएगा। इट engages in the planning and development, deployment of monetary resources, building, upkeep and the operation of the DFCs. ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज सागर मिशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस with India's neighboring countries. पहले तो what is Sagar vision of India? So that is the security and growth for all in the region, right? So that is the full form of Sagar vision of India. तो इंडिया जब से पावरफुल गवर्नमेंट के साथ 2014 में मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी है, इंडिया एशिया में चाइना का ऑप्शन बनने की कोशिश कर रहा है। सो टिल नाउ अगर एशिया में कोई डोमिनेटिंग कंट्री होता था तो वो कौन था, चाइना था। बट क्योंकि पिछले कुछ सालों से वी आर इन अ पोजिशन दैट वी कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना, तो इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, उनको साथ लेकर चाइना को काउंटर किया जा सके। एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेल्प विद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में बात करें जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सारे जो कंट्रीज़ है, all these countries are against China in some ways, and that's why they are helping India to counter China. And Sagar mission is one of uh, those broader vision of India. तो बेसिकली सागर विजन ये है कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन के साथ जुड़े हुए जितने भी कंट्रीज़ है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए,
और इंडिया की मदद से इंडिया उनको सस्ते में लोन दे सकता है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवा सकता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकता है। जब चाहे उनकी मदद कर कर करके India is trying to build up a team against China. Okay, so that is our सागर मिशन। तो रिसेंटली अंडर सागर मिशन कंबोडिया को मदद की गई। सो रिसेंटली द इंडियन नेवल शिप INS किल्टन हैज़ अराइव्ड इन कंबोडिया एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग मिशन सागर 3। एंड व्हाट इज द पोर्ट नेम? पोर्ट का नेम है शिहनाऊ क्विले पोर्ट। The ship will deliver 15 tons of humanitarian assistance and disaster relief material, stores for the flood affected people in Cambodia, which will be handed over to Cambodia's National Disaster Management Committee। तो क्योंकि कंबोडिया में रिसेंटली कोविड-19 और फ्लड की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, इंडिया ने हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है। अर्लियर द शिप डिलीवर्ड 15 टन्स ऑफ HADR स्टोर्स। व्हाट इज़ HADR? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ, जिसमें कपड़े होंगे, खाना होगा, मेडिसिन होंगी, बच्चों के लिए खिलौने हो सकते हैं या पढ़ाई का सामान हो सकता है, फूड आइटम्स होंगे, ऑल दोज थिंग्स। HADR store for the flood affected people in central Vietnam. Mission Sagar 3 is a part of India's HADR assistance to friendly foreign countries during the ongoing COVID-19 pandemic. In November 2020, as a part of Mission Sagar 2, INS Airavat delivered food aid to Sudan, South Sudan, Djibouti, and Eritrea. Launched in May 2020, Mission Sagar was India's initiative to deliver COVID-19 related assistance to the countries in the Indian Ocean littoral states. The countries included were Maldives, Mauritius, Madagascar, Comoros, and Seychelles. This mission is being undertaken in accordance with the security and growth for all in the region vision, reiterates India's position as a dependable partner and the Indian Navy as the preferred security partner and first responder. The mission also highlights the importance accorded to the Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN, countries and further strengthens the existing bonds. Cambodia and Vietnam are member nations of the ASEAN। तो क्योंकि इंडिया चाहता है कि लोगों को पता चले कि इंडिया इज़ अ गुड फ्रेंडली कंट्री, और इंडिया ऐसे कंट्रीज़ को मदद करना भी चाहता है जिन्होंने इंडिया के साथ अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन रखे हो या जो फ्यूचर में इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना चाहते हो, उन सारे कंट्रीज़ को इंडिया इज़ रेडी टू हेल्प विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेवी। ओके, एंड दीज आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट INS किल्टन and Sagar region. We have already talked about सागर विजन ऑफ द इंडिया मल्टीपल टाइम्स। अफ्रीका के काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ है वो भी सागर विजन में दे आर रेडी टू सपोर्ट अस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ईरान स्टेप्स अप यूरेनियम एनरिचमेंट। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, इंटरनेशनल न्यूज़, तो आपको पता होगा कि ईरान ने जो ईरान डील के तहत जितनी सीमा या जितनी लिमिट यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए ईरान को दी गई थी, उसको ब्रीच करके ज़्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट का जो ईरान का प्लान है उसको वो अब सक्सेसफुली रोल आउट कर रहा है इन ईरान। ओके, यू ऑलरेडी नो के 2019 में ही ईरान और USA दोनों ही ईरान डील से बाहर निकल चुके थे। पहले USA निकल गया ईरान डील से बाहर। USA ने धीरे धीरे सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया, जो सैंक्शन हटाए गए थे अंडर द ईरान डील, ताकि ईरान की इकोनॉमी को मदद मिल सके। बट क्योंकि ट्रंप के पास ये रिपोर्ट थी कि स्टिल ईरान इज़ डूइंग द यूरेनियम एनरिचमेंट, ओके, हाई छुप कर ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम चला रहा है, इसलिए USA ने ये डिसाइड किया कि नाउ वी विल नॉट सपोर्ट और वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द एक्चुअल ईरान डील। ईरान ने काफ़ी कोशिश की कि ईरान डील शुड बी इन प्लेस और जैसे डिसाइड हुआ था वैसे उसको फंडिंग मिलता रहे। बट क्योंकि चाइना, रशिया या जर्मनी या UK कोई भी कंट्री USA को नहीं मना पाया,
एट द एंड ईरान ने भी ये डिसाइड कर लिया कि नाउ वी विल ऑल्सो ब्रेक द ईरान डील, और उसी के चलते ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दिया है. सो रिसेंटली ईरान हैज़ रिज्यूम्ड enriching uranium up to 20% in the violation of the 2015 nuclear deal, that is also known as, or popularly known as, Iran deal, and also seized a South Korean flagged tanker near the crucial Strait of Hormuz. अब Strait of Hormuz भी हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है. We already know the strategic importance of this. Meanwhile, the USA has decided to keep nuclear powered aircraft near Nimitz in the Gulf region in the wake of threats from ईरान. ओके, हमने अभी कुछ महीनों पहले डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, बट क्योंकि यूएसए में इलेक्शंस थे और प्रेसिडेंट का पूरा ध्यान वहाँ पर था, इसलिए इसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था. अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में हमें पता ही है. ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, क्रूड ऑयल का जो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज़ थ्रू दिस रीजन. तो अगर ईरान इस 39 किलोमीटर के जो स्ट्रेट है, रास्ता जो है, अगर इसको बंद कर देता है या यहाँ पे अगर वो आतंक मचाना स्टार्ट करता है, तो ईस्ट साइड के जो भी कंट्रीज़ है, विच इंक्लूड्स इंडिया एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज़, हर जगह पे क्रूड ऑयल को लेकर स्कैरसिटी खड़ी हो सकती है, एंड nobody wants that. So it is the waterway separating Iran and Oman, linking the Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian Sea. On the north coastline Iran, and on the south coast there are UAE and Musandem, the enclave of Oman. The strait is 21 mile wide at its narrowest point, but the shipping lane is just 2 miles wide in the either direction. And we already know about the importance, we have discussed it multiple times. One of the world's most strategically important choke points. 2/3 of the total crude oil is transported through this Strait of Hormuz. ओके, और क्या इश्यूज है, तो ईरान काफ़ी इश्यू यहाँ पे खड़े कर रहा है ड्यू टू यूएसए के सैंक्शन की वजह से. राइट, ईरान का सीधा जवाब ये है कि यूएसए अपने सारे सैंक्शन अगर हटा लेगा तो हम स्मूथली अपनी इकोनॉमी चला पाएंगे. यूएसए ये बोल रहा है कि ईरान छुप कर ईरान डील को ऑनर नहीं कर रहा है, और स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग द यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी फंड ईरान एंड वी बी अ पार्ट ऑफ ईरान डील एज वेल. राइट, और पीछे के रास्ते ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट भी चालू रखता है. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स वाई वी आर सैंक्शनिंग ईरान फ्रॉम मल्टीपल डोर्स. क्या है यूरेनियम एनरिचमेंट? सो नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ 2 different isotopes, nearly 99% of U-238 and only around 0.7% of U-235. U-235 is a fissile material that can sustain a chain reaction in a nuclear reactor. तो जो ये U-238 को U-235 से अलग करने की जो प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज यूरेनियम एनरिचमेंट. So enrichment process increases the proportion of U-235 through the process of isotope separation. U-238 is separated from U-235. For nuclear weapons, enrichment is required up to 90% or more, which is known as highly enriched uranium weapons grade uranium. Or agar now why Iran is doing uranium enrichment? To become a nuclear power. अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा खतरा यूएसए को है, बिकॉज ईरान और यूएसए पिछले कई सालों से दे आर दी वर्स्ट काइंड ऑफ एनिमी, एंड दैट्स वाई यूएसए अपनी पूरी डिप्लोमेटिक पोजीशन को यूज़ करके ये चाहता है कि किसी भी तरह यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है ईरान में उसको रोक दिया जाए. ईरान को इतना पैसा ही नहीं मिलना चाहिए कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को आगे
ले जा सके, और उसी के लिए ये सारी लड़ाई दोनों देशों के बीच चल रही है. For nuclear reactors, enrichment is required up to 3 to 4%, which is known as low enriched uranium reactor grade uranium. और ये है 2015 की न्यूक्लियर डील. द एक्चुअल नेम वाज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, बट इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ईरान डील. और उस टाइम पे बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये डील हुई थी एक्चुअली में P5+1 countries, that includes USA, UK, France, China, Russia. These are P5 countries. Germany is +1, Iran and European Union. So these were the three agencies included. In May 2018, the US abandoned the deal, criticizing it as flawed and reinstated and tightened its sanction. तो 2018 से 2019 तक पूरा एक साल यही नेगोशिएशन चला. ईरान ने यही बोला कि वी विल वेट टिल 2019, आप यूएसए को मना लो वापस टू ज्वाइन द ईरान डील. अगर यूएसए वापस ईरान डील को ज्वाइन नहीं करता है और ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं उसको अगर दूर नहीं किया जाता है, देन वी विल अगेन स्टार्ट अवर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम. ओके, और नाउ ईरान हैज़ डन दैट एंड ईरान हैज़ क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ what has been decided in Iran deal for uranium enrichment. Next जो हमारा टॉपिक है that is also related to international relations, और वो है Indian missions in Estonia, Paraguay and the Dominican Republic. तो देखिए क्या है, तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी ओपन करने का इंडिया का प्लान है इन दीज 3 कंट्रीज. बट बिफोर ओपनिंग द एम्बेसीज जो प्री स्टेप है दैट इज़ नोन एज इंडियन मिशंस, तो वही इन 3 कंट्रीज़ में ओपन किए गए हैं. सो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ 3 इंडियन मिशंस इन एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक इन 2021. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट for India's growth and development through partnerships with friendly countries. Expected benefit क्या होंगे? तो opening of Indian missions in these 3 countries will help expand India's diplomatic footprint in future, deepen the political relations, enable growth of bilateral trade, investment and economic engagements, facilitate stronger people-to-people contact, bolster political outreach in multilateral forum, and help garner support for India's foreign policy objectives. Indian mission in these countries will also better assist the Indian community and protect their interest. Enhancement of India's diplomatic presence will inter alia provide market access to Indian companies and bolster Indian exports of goods and services. This would have a direct impact in augmenting domestic production and employment in line with the goal of a self-reliant India और आत्मनिर्भर भारत. तो अब तक यहाँ पे हमारा एम्बेसीज नहीं थी, तो आपको एक सवाल उठना चाहिए, देन हाउ इंडियंस विल और टिल नाउ हाउ इंडियंस आर गोइंग टू दिस कंट्रीज. ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे इंडियंस नहीं रहते होंगे, हाउ इंडियन कम्युनिटीज़ यहाँ पे जाकर सेटल हुई है. तो देखिए क्या होता है कि इसके आसपास का कोई जो कंट्री होगा उसके थ्रू इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन इन कंट्रीज़ के साथ अब तक चला रहा था. बट क्योंकि अब इंडिया चाहता है कि हर कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन हो, एंड दैट्स वाई सेपरेटली इन कंट्रीज़ में हमारे मिशन सेटअप किए जा रहे हैं. मिशंस आर वन काइंड ऑफ एम्बेसीज ओनली. ओके, इट इज़ नथिंग डिफरेंट. एस्टोनिया के साथ क्या है हमारे रिलेशन और कहाँ है एस्टोनिया का जोग्राफिकल लोकेशन? सो इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ द 3 Baltic states. Baltic states, northern east region of Europe, containing the countries of Estonia, Latvia and Lithuania, जो तीनों आपको देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं. On the eastern shores of the Baltic Sea, the Baltic region is not rich in natural resources, and that's why वो अपने सारे जो नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स है, वो आउटसोर्स करते हैं. Though Estonia is an important producer of oil shale, a large share of mineral and energy resources is imported.
it is welcomed the decision, saying it would strengthen ties in the trade and cyber security in particular. The decision had been awaited since 2013 when Estonia set up the embassy in Delhi, while India has dealt with it through its embassy in neighborhood Finland. तो देखिए, दिस इज़ एस्टोनिया और यहाँ पे है फिनलैंड। तो अगर मान लीजिए कि आपको एस्टोनिया का वीज़ा चाहिए, अगर किसी इंडियन सिटीज़न को, या अगर किसी एस्टोनियन सिटीज़न को अगर इंडिया आना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फिनलैंड की इंडियन एम्बेसी में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? और इस तरीके से ये काम होता है। ऐसा ही अगर एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूँ, तो अगर आपको मकाऊ या हांगकांग जाना है, तो आपको वहाँ का डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो टू द चाइनीज़ एम्बेसी, और चाइनीज़ एम्बेसी आपको मकाऊ का एंड हांगकांग का वीज़ा देगी। ओके, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक एज वेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। द डिसीजन हैड बीन अवेटेड सिंस 2013, और एस्टोनिया ने ऑलरेडी अपनी जो एम्बेसी है वो इंडिया में एस्टेब्लिश कर ली थी इन 2013, बट इंडिया ने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया था। अब जाकर इंडिया ने वहाँ पे एक मिशन ओपन किया है। India and Estonia will also serve together in the Security Council next year. There is a significant room for enhanced economic engagement in information technology, cyber security, e-governance, and blockchain. Total bilateral trade in 2018-19 was 172 US million dollar, an increase of 22.5% from 2017-18. और ये आने वाले सालों में ये जो ट्रेड है वो बढ़ने ही वाला है। ओके, so why not to set up a diplomatic ties with Estonia, and that's why the decision has been taken. दूसरा जो कंट्री है that is a Latin American country known as Paraguay. So it is a landlocked country in South Central South America. Rivers provides access to the Atlantic Ocean and serve as sites for the hydroelectric power plants that have made Paraguay one of the world's largest exporters of hydropower. Paraguay is a member of Mercosur. Now, what is Mercosur? So, it is the Southern Common Market, Mercosur for its Spanish initials. और क्योंकि पैराग्वे में स्पेनिश इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, द नेम आपको यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज़ मेरकोसुर, इज़ अ रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस initially established by Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay, and subsequently joined by Venezuela and Bolivia. India has a preferential trade agreement with Mercosur. तो देखिए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी जीएसपी के बारे में, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को टैक्स बेनिफिट्स देगा या इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देगा, that is known as a preferential trade agreement. It had set up its mission in Delhi in 2006. For the fiscal year 2018-19, India's export to Paraguay were valued at 161 US million dollar, while Paraguay's export to India were valued at 21 million US dollar. Soybean oil accounts for over 90% of Paraguay's exports to India. तो इसको अब आने वाले सालों में बढ़ाना है हमें, और जो मल्टीलेटरल या बायलेटरल टाइज है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए वी आर गोइंग टू सेट अप अ मिशन इन पैराग्वे एज वेल. एंड द लास्ट कंट्री इज डोमिनिकन रिपब्लिक. सो इट इज़ अ कंट्री ऑफ द वेस्ट इंडीज that occupies the eastern two-third of Hispaniola, the second largest island of the Greater Antilles chain in the Caribbean Sea. It had set up its mission in Delhi in 2006. India's exports to the Dominican Republic are small but growing. Bilateral two-way trade stands at around USD 120 million. Main items of India's exports are cotton textiles and ready-made garments, drugs and pharmaceuticals, furniture, transport equipments, etc. that we are sending to Dominican Republic. तो ये तीनों कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं जहाँ पे इंडिया ने जनवरी 2020 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है टू सेट अप द मिशन इन दीज थ्री कंट्रीज, डोमिनिकन रिपब्लिक, पैराग्वे एंड एस्टोनिया. ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, और वो है कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए अप्रूवल मिल गया है. नाउ व्हाट इज़ द रेस्ट्रिक्टेड यूज़? तो देखिए, कोविड शील्ड
और कोवैक्सीन दोनों की जो क्लिनिकल ट्रायल थी, फेज़ 3 ट्रायल, उसको स्किप करके ये परमिशन दे दी गई है, अप्रूवल ग्रांट कर दिया गया है। अब इसका क्या मतलब होगा कि इमरजेंसी केसेस में क्लिनिकली ये वैक्सीन दी जा सकती है टू द emergency patients or to the critical patients. Okay, so recently the drugs controller general of India has approved COVID shield and covaxin vaccine for restricted use against COVID-19 in the country. COVID shield, covaxin and BNT 162b2 applied to the Central Drug Standard Control Organization seeking emergency use approval, जिसमें से कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है. So both vaccines have received a restricted use approval in the emergency situation. This means the vaccine have been approved for use despite the companies not having completed clinical trials. This approval is, however, subject to regular submission of safety, efficacy, and immunogenicity data for their original ongoing trials. The immunogenicity of a vaccine is its ability to prompt an immune रिस्पॉन्स, वो कितनी असरकारक है, उसका डेटा गवर्नमेंट को सबमिट करवाना पड़ेगा, दोनों ही कंपनीज को, फॉर बोथ द वैक्सीन्स. द एफिकेसी इन दिस केस इज अ मेजर ऑफ its ability to bring down the number of symptomatic COVID-19 cases. राइट, एफिकेसी का मतलब क्या है कि द पर्सन हु इज ऑलरेडी अफेक्टेड, तो उसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है, वो जो परसेंटेज होंगे, वो जो रेट होगा, दैट इज नोन एज रेट ऑफ एफिकेसी. इमरजेंसी अप्रूवल का रीज़न क्या था, ताकि कोविड केसेस को कम किया जा सके. ओके, क्लिनिकल ट्रायल ऑनगोइंग चलते रहेंगे, बट इन सम केसेस उसको स्पीड अप करने के लिए, प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए उसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है. ओके, एंड दीज आर सम इंफॉर्मेशन फॉर यू टू रीड फ्रॉम योर एंड. ओके, कोविड शील्ड, तो ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन है, जिसका इंडिया में पार्टनर कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इन इंडिया. तो दिस इज़ नॉट कंप्लीटली नेटिव वैक्सीन फॉर अस, इसको सिर्फ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इंडिया में, अदरवाइज इट्स अ ऑक्सफोर्ड manufactured vaccine. So it is a version of the vaccine developed by the University of Oxford in the collaboration with Swedish British drug maker AstraZeneca. Serum Institute of India is the manufacturing partner in India. Recently प्राइम मिनिस्टर ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो प्लांट है पुणे में, वहाँ पे अगर आपको याद हो तो विजिट किया था. ओके, और दूसरी जो वैक्सीन है दैट इज कोवैक्सीन. सो इट इज इंडियाज ओनली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन. नाउ दिस इज important for us. Developed by Bharat Biotech, Hyderabad, in a collaboration with the Indian Council of Medical Research's National Institute of Virology, Pune. तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है. कंप्लीटली उसका सारा जो रिसर्च था एंड एवरीथिंग was done in India. It is an inactivated vaccine which is developed by inactivating the living microorganisms that causes the disease. This destroy the ability of the pathogen to replicate but keeps it intact so that the immune system can still recognize it and produce an immune response. It is expected to target more than just a spike protein. It also aims to develop an immune response to the nucleocapsid protein, the shell of the virus that encloses its genetic material. Right? तो ये वैक्सीन में किल्ड वायरस आर देयर, और उसको हमारी बॉडी में डाला जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, बट हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो किल्ड वायरस को भी पहचान लेगी, ताकि जब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग वायरस जब अटैक करेंगे टू आवर बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर उसको प्रोटेक्ट करेगी हमारे बॉडी को फ्रॉम दैट लिविंग वायरस. सिग्निफिकेंस क्या होगा? सो कोवैक्सीन इज मोर लाइकली टू वर्क अगेंस्ट न्यूअर वेरिएंट्स ऑफ द वायरस इंक्लूडिंग द यूके वेरिएंट, एज इट कंटेन्स epitopes from other genes in addition to those from spike protein. Immunogene is a stimulus that produces a humoral or cell mediated immune response
whereas antigens are any substance that binds specifically to an antibody. और देखिए हमें पता है कि पिछले 1 महीने में एक नया स्ट्रेन कोविड-19 का विच इज़ मोर ट्रांसमिटेबल, 70% वो जल्दी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। तो नाउ गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि उसके फैलने से पहले हमारे पास वैक्सीन इन हैंड होनी चाहिए, ताकि हम कोरोना वायरस को पूरी तरह से हम उसको प्रिवेंट करने में कामयाब हो सके। सो दिस वाज योर टुडेज़ लेक्चर। होमवर्क में आपके लिए 3 टॉपिक है। फर्स्ट इज़ इंडिजीनियस वैक्सीन न्यूमोसिल, इंडिया में बनाई गई वैक्सीन। सेकेंड इज़ बर्ड फ्लू थ्रेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र सारे स्टेट्स में बर्ड फ्लू भी धीरे धीरे फैल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में क्रिटिकल कंडीशन होने की पॉसिबिलिटी है। एंड थर्ड इज़ डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020। तो ये तीनों टॉपिक के ऊपर आपके एंड से आपको इसको पढ़ना है। अगर कोई डाउट है यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।